Hello, Rakesh. Jai Baba, can you hear me? Jai Baba, everybody. Yes, Manoj, we can hear you. Good evening, Okay. everybody. Good evening. Good evening, everybody. Avatar Meher Baba ki Jai. Avatar Meher Baba ki Jai. Avatar Meher Baba ki Jai. It's 5:30 p.m. Ladies and gentlemen, welcome to Baba Full Sundays for yet another evening celebrating beloved Avatar Meher Baba's new life. Before we proceed with the program for today, let us all join our hands in remembrance of our eternal beloved. It's time for prayers. The prayers will be displayed here in English on the screen. The words will be there. Let us all please mute our mics in complete remembrance to our eternal beloved. Janice, may I request you to please say the prayers in English. Avatar Meher Baba ki Jai. अवतार मेहर बाबा की जय. O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. Your knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and your knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth and the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parbrahma, Allah, Ilahi, Yesan, Ahura Mazda, and God the Beloved. You are named Izad, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, and for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most specially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more,
and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's diamond till the very end. Avtar Meher Baba ki jai. Avtar Meher Baba ki jai. Avtar Meher Baba ki jai. Thank you. थैंक यू जेनिस। आज नई जिंदगी, बाबा की जो नई जिंदगी, उसकी जो चर्चा हम पिछले 2 बार से कर रहे हैं, आज उसका तीसरा दिन है। इट्स द थर्ड संडे, एंड टुडे वी विल ऑफ कोर्स बी talking about the third and a very important phase of the 4 phases, which is the gypsy phase. पिछले रविवार को हम वहां तक रुके थे जब बाबा अपनी नई जिंदगी के साथियों को लेकर सारनाथ के We are not Yes, able to hear you. I am very much there. Am I audible? Yes, you're audible. Go on, Manoj. पिछले रविवार को हम वहां पर रुके थे जहां बाबा अपने नई जिंदगी के साथियों को सारनाथ के बुद्ध भगवान के उस मंदिर में लेके गए थे, जहां उसके मंदिर के नीचे, मंदिर के परिसर में जो मेडिटेशन के जो केव्स थे वहां पर लेके गए थे, और बाबा ने उनको कपड़े अपने उतार कर लंगोट में प्रार्थना वगैरह वहां पर करवाई थी। वो सारा पूरा फेज देखा था। फिर बाबा वहां सारनाथ से हरिद्वार चल के पूरे एक कारवां को लेकर, एक कैरावैन को लेकर, जिसमें एनिमल्स भी थे, जानवर भी थे, वो जिप्सी फेज की वहां से तैयारी शुरू हुई। तो उसको आज हम देखेंगे, मगर उससे पहले कार्यक्रम का माहौल एक बनाने के लिए जो नई जिंदगी का तराना है, द सॉन्ग ऑफ द न्यू लाइफ, वो आपके सामने नामदेव सोलापुरे, जो हमारे सेंटर पे भी आया करते थे, उनकी आवाज में जो रिकॉर्ड किया हुआ है। नामदेव सोलापुरे के क्या कद में जितने छोटे थे, आवाज उनकी उतनी ही बुलंद थी। I don't know if Sam is there on the call today, but we all remember our dear Namdev Solapure. So in Namdev's voice, let us begin today's program. The gypsy phase, the phase of wandering, the phase of begging, the most exciting caravan phase, with the song of the new life, Nai Zindagi Ka Tarana. MV, if we can please play the song. है जीना तुम्हें गर नई जिंदगानी, करो तर्क दिल से ये दुनियाए पानी, सुनो महल बाबा की खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी, सुनो महल बाबा की। खुदा के भरोसे पे हम जा रहे हैं, खुदा के भरोसे पे हम जा रहे हैं, कसम से इरादों को गरमा रहे हैं। गजल नामुरादी की हम गा रहे हैं, गजल नामुरादी की हम गा रहे हैं, बला और मुसीबत को बुलवा रहे हैं, सुनो महल बाबा की खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी, सुनो महल बाबा की। उम्मीदों का रोना, नवादों का शिकवा शिकवा, उम्मीदों का रोना, नवादों का शिकवा, न इज्जत से मतलब न जिल्लत की परवाह, न गीबत किसी की न खतरा किसी का, न गीबत किसी की न खतरा किसी का,
यही रंग है अब अपनी जिंदगी का। सुनो मेहर बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की। ख्यालों में उलझन है बाकी न बंधन है, निखवत न गुस्सा न कुछ काम कंचन। ख्यालों में उलझन है बाकी न बंधन है, निखवत न गुस्सा न कुछ काम कंचन। है मजहब से रिश्ता मजहब से रिश्ता न कुछ फिक्र तन मन। सवार एक किश्ती में शेखों भी रहे मन। सुनो मेहर बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की। न अपने लिए कोई छोटा बड़ा है, न अपने लिए कोई छोटा बड़ा है। मुरीद और मुर्शिद ना मौला रहा है। अखवत का बाहम जो रिश्ता जुड़ा है, अखवत का बाहम जो रिश्ता जुड़ा है। हमें दर्द गम में मजा आ रहा है। सुनो मेहर बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की। न दुनिया न उक़बा न दोज़ख न जन्नत, न सिद्धि न शक्ति न कश्फ व करामत। ये सब नक्शे बातिल, ये सब नक्शे बातिल हुए दिल से रुखसत। ये सब नक्शे बातिल हुए दिल से रुखसत। जो कुछ है वो हाल की कदरो कीमत। सुनो मेहर बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की। ये अल्फाज बाबा के सुन दिल से प्यारे। ये अल्फाज बाबा के सुन दिल से प्यारे। शुमार अब मेरा है बराबर तुम्हारे। मगर हुक्म अच्छे बुरे दू के न्यारे। मगर हुक्म अच्छे बुरे दू के न्यारे। बजा लाओ फौरन खुदा के सहारे। सुनो मेहर बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की।
चले दिल पे छुरियां, चले दिल पे छुरियां, मगर लबों खंदार, ये एक रंग है जिसको करता हूँ उरियां। तेरे तंग दस्ती में दौलत है पिन्हा, तेरे तंग दस्ती में दौलत है पिन्हा, गदाई पे तेरे करे रश्क शाह शाह। सुनो मेहर बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की। है बेशक खुदा बरहक नबी है, पहरदार हर दम वली है। हमें तो फकत बेबसी बेकसी है, हमें तो फकत बेबसी बेकसी है। कहूँ क्या तुम्हें क्या नई जिंदगी है। सुनो मेहर बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा मेहर बाबा। सुनो मेहर बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की, सुनो मेहर बाबा की, सुनो मेहर बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय. What a beautiful voice, what beautiful words. And this message which we see here is such a beautiful message that Baba had given on the new life. This new life is endless. And even after my physical death, it will be kept alive by those who live the life of complete renunciation, of falsehood, lies, hatred, anger, greed, and lust. And who, to accomplish all this, do no lustful actions, do no harm to anyone, do no backbiting, do not seek material possessions or power, who accept no homage, neither covet honor nor shun disgrace, and fear no one and nothing, but those who rely wholly and solely on God, and who love God purely for the sake of loving, who believe in the lovers of God and in the reality of manifestation, and yet do not expect any spiritual or material reward, who do not let go the hand of truth, sadakat ka hathon se daman na chute, and who, without being upset by calamities, bravely and wholeheartedly face all hardships, chale dil pe chhuriyan, magar lab ho khanda, with 100% cheerfulness, and give no importance to caste, creed, and religious ceremonies. This new life will live by itself eternally, even if there is no one to live this life. और ये जो जिप्सी फेज जो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बाबा और उनके नई जिंदगी के साथी पुरुष और महिला सारनाथ से हरिद्वार इतना लंबा सफर, अगर आप उसको मैप के ऊपर देखें, इफ यू सी इट ऑन द मैप, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, जर्नी बहुत लंबी है. They set out on foot. They set out on foot. They lived in the open. They lived wherever accommodation was available, whatever type of accommodation was available, largely in the open. It was the month of December 1949. And in northern India, particularly in UP, आपको पता है वहां ठंड बड़ी कड़ाके की ठंड होती है उत्तर भारत में, और बहुत
और सबसे महत्व की बात कि जो भी खाना मिलता था वो भिक्षा में मांगकर लाते थे और खाना सब साथ में मिलकर खाते थे। तो ये इतनी अधिक कठिनाइयों का जीवन, इतनी अधिक कठिनाई अवतार ने खुद, द लॉर्ड हिमसेल्फ हैज टेकन पार्ट in this new life and has lived this new life for us. भावजी के शब्द कहीं और मैंने पढ़े थे, बड़े सुंदर है नई जिंदगी के संबंध में, कि बाबा ने खुद ने ये नई जिंदगी हमारे लिए जी है। बाबा खुद इन तकलीफों से और इन मुसीबतों से गुजरे हैं। बाबा ने खुद हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि एक नई जिंदगी किस तरह से जीना है। और अपने साथियों के साथ जो बाबा की मंडली के लोग थे, वो भी जो गए थे, जिन्होंने अपार कठिनाइयों का सामना किया। एंड अदी केरानी राइट्स, इनफैक्ट अदी वाज वन ऑफ द पर्सन्स who later left by Baba's permission, went back to the old life. There were 4 of them: Dr. Gani, Adi, Gustaji and Baba Das. And Adi Kirani writes that this was the most crushing period of my life with Baba, the new life. So you can imagine the amount of difficulty one has to go to fight one's lower self, which is what is mentioned over here. The lower self of falsehood, lies, hatred, anger, greed, and that fight is an internal fight. और उस लड़ाई को जीने के लिए, उस लड़ाई के ऊपर जब विजय मिलती है, तब नई जिंदगी इंसान जी पाता है। और ये जिप्सी फेस की जो शुरुआत हुई थी, ये सारनाथ से हुई थी। डॉक्टर, मैंने आपको पिछले रविवार को भी बताया कि डॉक्टर नाथ और डॉक्टर खरे, गया प्रसाद खरे और डॉक्टर नाथ ने बनारस में, जब बाबा भिक्षा बेगिंग फेज में थे, लंगोटी फेज में, तो बाबा की बहुत मदद करी थी। भिक्षा उनको सबसे पहले वहीं से मिली थी। बाबा उन्हीं के घर पे गए थे, नाथ और खरे के घर पे। तो बाबा बड़े, और जो उन लोगों ने मदद की नई जिंदगी के साथियों की, तो बाबा ने फिर इरत से कहा कि इनको कुछ तो हमें इनको देना चाहिए। तो बाबा नई जिंदगी में किसी को मिलते नहीं थे, मगर नाथ और खरे और उनके परिवार को बाबा ने बुलाया था और उनको अपना दर्शन नहीं दिया, मगर उनको बुलाया और उनको उनका धन्यवाद बाबा ने वहां पर व्यक्त किया। और बढ़िया बात यह है कि जब ये सारनाथ से ये लोग निकल रहे थे हरिद्वार के लिए, तो उनका जो लगेज था, ये मांजरी माफी पहुंचाना था देहरादून के नजदीक, जहां पर आज बड़ा सेंटर है। तो लगेज पहुंचाने के लिए 300-400 रुपए की जरूरत पड़ी ट्रेन से। तो पैसे कहां से लाए? तो वो चर्चा निर्माण हुई और बाबा ने ऑर्डर दिया कि सारे जो नई जिंदगी के साथी जो है, वो अपनी अपनी घड़ियां जो है, वो घड़ियां बेच दे। घड़ियां बाबा के सामने रखते, वो घड़ी बेच दी जाएगी और उनमें से जो पैसा निकलेगा, वो पैसा वो फ्रेट चार्जेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो केकी देसाई को दिल्ली से बुलाया गया था। केकी देसाई से 500 रुपए लिए गए, वो घड़ियां उनको दी गई थी। बाबा ने उनको ऑर्डर दिया था कि ये घड़ियां तुम दिल्ली जाकर उनको बेच देना और अपने पैसे वापस ले लेना। अब जैसे मैंने कहा कि कारवां चला था, तो उसमें जानवर भी थे और ये बड़ा यूनिक साइट था। सारे सब लोग अपने सफेद कफनी, ग्रीन टर्बन, इंक्लूडिंग बाबा, एंड व्हाट अ साइट दैट वाज। तो डॉक्टर नाथ और डॉक्टर खरे ने ऊंट बाबा को ऊंट पर गिफ्ट दिया था भिक्षा में, जिसका नाम रखा गया था भोलानाथ। ऊंट की गाड़ी, 2 गाय के बछड़े, 2 शी डोंकीज एंड अ व्हाइट हॉर्स, ये सब बाबा को उन्होंने भिक्षा के तौर में दिए थे। इंडिविजुअल ड्यूटीज फॉर लुकिंग आफ्टर दीज वर असाइन्ड इन अ मॉर्निंग डिस्कशन। तो बाबा ने सबको कौन कौन किन जानवरों को की देखभाल करेगा, वो सारी ड्यूटीज बाबा ने वहां पर रख दी। Donkin pointed out that during the journey the companions would be sleeping out in the open in the severe cold. So Baba ordered Vishnu to purchase second hand, if possible, khaki woolen pants and socks. डोंकी ने कहा कि बाबा जब हम निकलेंगे तो इतनी ठंड होगी और किसी के पास गर्म कपड़े भी नहीं है। तो बाबा ने कहा कि खाकी गर्म पैंट जो है वो विष्णु से कहा कि खरीदो। तो विष्णु पैंट तो खरीद सके, मगर मोजे उन्हें मिले नहीं, सॉक्स नहीं मिले। एंड बाबा डिस्ट्रीब्यूटेड अ पेयर टू ईच कंपेनियन। On the afternoon of 11th December 1949,
The day before they left, Baba discussed with the companions how best to acknowledge the services rendered by Khare and Nath. और ये मैंने कहा कि उनके बाबा बाद में उनको मिले थे, और 7:30 बजे अगले दिन सुबह 12 दिसंबर 1949, Baba leading the way left Sarnath on foot with the 4 women and Erach and Donkin nearby. The whole caravan followed an hour and a half later. पूरा कारवां जो है, ये सारे तमाम जानवरों के साथ ये पीछे, बाबा के पीछे, बाबा 4 महिला और एरच और डॉन्किन ये आगे निकली. The white horse symbolizing purity and the sanctity of the avatar's advent. सफेद घोड़ा अवतार के आगमन की निशानी, ये बाबा दास के चार्ज में दिया गया. Behind it came the camel cart. ऊंट की गाड़ी पीछे आई जो हमारे बैदुल चला रहे थे. बुलक कार्ट जो थी वो सदाशिव के हाथ में दी थी, और ये कैरवैन जो था और बुलक कार्ट और 2 बुलक, ये बाबा ने, पादरी जो मेहराबाद में थे, पादरी उनके साथ गए नहीं थे, तो बाबा ने पादरी से कहा था कि ये तमाम चीजों की का इंतजाम करके तू खुद आके, मुगल सराय करके स्टेशन है, वहां पर बहुत बड़ा जंक्शन है, मुगल सराय पे आके दे जाना. और एरच और पेंडू जाके उसको लेकर आए थे. तो बैदुल के चार्ज में थी ये ऊंट की गाड़ी. बुलक कार्ट was driven by Sadashiv. The new life caravan pulled by the black English bull Raja with Pendu driving, followed by the 2 cows and their calves looked after by Neelu, and lastly the 2 donkeys in Gani and Gustad ji's charge. गनी और गुस्ताद जी दोनों की उम्र हो गई थी, और दोनों को 2 गधियां वहां पर बाबा ने इंचार्ज में दी थी. The rest of the companions while walking were to stay on both sides of the camel cart, caravan and bullock cart, lest the animals get out of control for some reason. और फिर ये कारवां वहां से निकला. और इसकी जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, उसका जो थीम जो है, इतना सुंदर लॉर्ड मेयर में लिखा है, जो मैं पढ़ रहा था. The gypsy life had begun. Age was in an exalted state while witnessing the scene. जिप्सी जीवन की शुरुआत हो गई थी. समय बड़ा खुश था. It drank in every detail to describe the generations to come. The angels wept in longing to participate in the Creator's caravan. How they wished to take physical form to walk by his side. As if to subdue lust, greed and anger, age declared, the caravan of men, women and animals marched on. Hearing the tinkle of the camel's bell, these deep-rooted weaknesses in man began to tremble. As Mani later recollected, Mani ने फिर कहा, our camel of the new life had a Persian silver bell around its neck. ऊंट के गले के अंदर एक पर्शियन सिल्वर का एक घंटी रखी गई थी. The bell of the camel is mentioned in the verses of Hafiz. हाफिज की कविताओं के अंदर ऊंट की घंटी का जिक्र है. The bell worn by the leading camel of a caravan. And Mani writes so beautifully. The bell worn by the leading camel, एक कारवां का सबसे आगे जो ऊंट चल रहा है, उसके गले की घंटी है. ये घंटी की आवाज से हमेशा इस बात का प्रतीक हमेशा निर्माण होता है कि कारवां हमेशा के लिए कहीं रुक नहीं सकता. The caravan has to move on. Move on. This is not your destination. Moving forward. और जब ये कारवां चला तो पादरी वहां पर थे. पादरी was not part of the caravan, but पादरी दूर से देखा, फिर वो मेहराबाद वापस चले गए. पादरी कहते हैं कि it was a sight of God. मेरे पास कैमरा था, मैं पिक्चर ले पाया, लेकिन बाबा ने फॉरबिड किया था कि पिक्चर नहीं लेना है. और जब ये लोग चले तो रास्ते में सब लोग बहुत ही उत्सुकता से देख रहे थे. हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था. सामान्य लोग इनको पूछने लगे कि भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो. तो सबने कहा कि हम हरिद्वार जा रहे हैं. तो लोग कोई नमन करने लगे, कोई उनको बेस्ट विशेस देने लगे. वैसे करके ये कारवां चला और जानवरों ने बहुत रास्ते में बहुत तकलीफ थी इनको संभालते. और आगे जो हम ड्रामा देखेंगे उसके अंदर ये सारी बातें मेंशन की गई है, वो आप उसमें देख सकते हैं. तो ये 2 जो गधियां थी जो गुस्ताद जी और गनी के हाथ चार्ज में थी, वो गुस्ताद जी और गनी को इतना परेशान करने लगी कि बाबा ने वो 2 गधियां महिलाओं को दे दी. तो द 4 women.
और महिलाएं उनका बहुत अच्छा ख्याल रखती थी। तो महिलाएं लेकर चल रही थी उनके साथ। और एक कहीं कहीं से एक दिन कोई एक गाड़ी वाला, एक बैलगाड़ी वाला वहां से पास हुआ। उन्होंने 4 महिलाओं को देखा और उसने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम हरिद्वार जा रहे हैं। तो कहे कि आप मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको हरिद्वार पहुंचा देता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी कि आप जहाँ पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं, मैं आपको वहां पर पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो चल के ही जाएंगे। तो वो बैलगाड़ी वाला आगे चला गया। कुछ दिन के बाद बाबा वहां पर आए। बाबा ने चारों महिलाओं को कैरेवान में बैठने के लिए कहा, और वो बैलगाड़ी वाला जो आगे चला गया था, वो आगे जाके वो कहीं रुका, वो आराम करने के लिए। और जब वो कैरेवान वहां से पास हुआ, तो उस गाड़ी वाले ने 4 महिलाओं को देखा कि आराम से वो कैरेवान में बैठे थे। और पहले उन्होंने उसको कहा था कि हम तो चल के ही जाएंगे, हम बैठ के नहीं जाएंगे। तो कैरेवान ने ऐसा ऐसा उनको वो जो गाड़ी वाला था, उसने ऐसा लुक उनको दिया कि कभी महिलाओं को समझ में आया कि बाबा से कोई भी बात छुपी रहती नहीं। अभी प्रश्न ये आता है कि ये लोग वहां से निकले थे, गए शिवपुर से आगे जौनपुर, जौनपुर से मुरादाबाद, मुरादाबाद से मांजरी माफी, देहरादून और फिर हरिद्वार। ये ऐसा पूरा रास्ता लेके गए। तो बाबा ने एक दिन मीटिंग बुलाई और सबसे कहा कि देखो, अभी तुम लोग सब जो मेरे नई जिंदगी के कंपेनियन हो, तुम लोग अब खुद डिसाइड करो कि तुम लोगों को खाना किस तरह से बनाना है, क्योंकि सबका खाने का टेस्ट अलग अलग है। कोई कुछ खाना पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है। तो मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम लोग डिसाइड करो कि खाना कैसे करना है। और बाबा ने वहां पर एक बात रखी थी कि नई जिंदगी में आने से पहले बाबा ने मेहरजी करकरिया को हर एक नई जिंदगी के साथी के लिए 1,000 रुपए दिए थे कि अगर किसी को वापस जाना पड़े तो मेहरजी उनको ये 1,000 रुपए दे ताकि वो अपना देखभाल, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आगे बढ़ा सके। तो बाबा ने सबसे पूछा कि तुम सबके 1,000 रुपए मैंने मेहरजी को दिए हैं, तो क्या तुम वो पैसे मुझे देना चाहते हो, जिसमें से हम हमारे खाने की समस्या हल हो सके, या तुम अपने पास रखना चाहते हो, या तो तुम मुझे देना नहीं चाहते? तो सबने बाबा को वो पैसे दे दिए। 15,000 रुपए इकट्ठे हुए थे। अभी बाबा ने कहा कि तुम लोग डिसाइड करो कि खाना किस तरह से करना है। तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बाबा ने सबको कहा कि मैं तुम लोगों को परमिशन देता हूं, मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा नहीं। लेकिन सबके मन में यही बात चल रही थी कि बाबा कह तो रहे हैं, मगर पीछे से घुमा फिरा के खाने की बात में ऐसे घुमाएंगे कि सबके गले के अंदर ये हड्डी, ये मुसीबत आ जाएगी। सबने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर बाबा ने गनी को कहा कि गनी, तुम बताओ, तुम तो खाने के लिए बड़े उत्सुक रहते हो, तुम बताओ, तुम जिम्मेदारी लो सबकी, ये पूरे इसका खाना किस तरह से होना चाहिए सबका। तो गनी ने कहा कि बाबा, अगर सब लोग मेरे पीछे खड़े हो तो मैं खाने की जिम्मेदारी ले सकता हूं। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, हम लोग वोटिंग करते हैं। तो 16 लोगों ने वोट किया कि गनी को जिम्मेदारी दी जाए कि नहीं। तो 16 में से इंक्लूडिंग बाबा, गनी को केवल 9 वोट मिले। बाकी सबने कोई वोट, किसी को भलते सलते को वोट दे दिया और वो बात वहीं पर खत्म हो गई। किसी को जिम्मेदारी लेनी नहीं थी। मगर बाबा देखिए बड़े चतुर थे। बाबा ने ये बात ऐसे घुमाई कि अंत में उन्होंने, किसी ने जिम्मेदारी ली नहीं, क्योंकि सब जानते थे बाबा कैसे पीछे से घुमाते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि चूंकि अब कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग भिक्षा मांगकर ही खाना खाएंगे। तुम्हारे पास जो अपॉर्चुनिटी मैंने तुम्हें दी थी, वो अपॉर्चुनिटी निकल गई है करके। तो ये देखिए कितने बड़े उस्ताद थे। और ये एरच अधी सब लोग जानते थे कि बाबा ये घुमाने वाले, इसलिए कोई बीच में पड़ा नहीं। बाबा ने एरच को भी ये मौका दिया था। एरच ने कहा, बाबा आई विल लीड, बट आई विल नॉट बिकम द मैनेजर ऑफ और बी इन चार्ज ऑफ द फूड करके। तो ये सब, तो ये बेगिंग का सिलसिला शुरू होता है। बाबा दास गनी और एरच को खास तौर से बेगिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। और एरच भाई जाकर घरों में जाके, तो सुबह ये इतना, एरच और मनी ने एक फिल्म के अंदर, आई विश वी कैन प्ले दैट फिल्म आल्सो नेक्स्ट संडे, उसको पूरे नजारे को डिस्क्राइब किया है कि ये जब कारवां चलता था तो सुबह सुबह ये लोग निकलते थे, अर्ली मॉर्निंग, चाय और जो कुछ भी नाश्ता मिलता था, खुले में सोते थे ठंड के अंदर। और जब ये सुबह निकलते थे तो बाबा एरच को जाके कहते थे कि जाकर गो एंड बेग फॉर द फूड। और जहां जहां भी वो एरच भाई जिस जिस घरों के अंदर
उनके घरों की चिमनी से धुआं निकलता था, उन घरों के अंदर एरज भाई वहां पर जाते थे। कहीं कहीं तो एक महिला के घर पे चले गए, बहुत ही बूढ़ी महिला थी, बहुत गरीब थी, उसके घर में देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, मगर उसने एरज को देखा और एरज भाई वहां पर खड़े हो गए, प्रेम से भिक्षा दीजिए, तो वो बगल में जाती है किसी के घर में और वहां से आटा लेकर एरज भाई के उसने दिया। किसी किसी के घर में एरज भाई जब जाते थे तो लोग जो भी उनके घर में जो बनता था, सब्जी या रोटी या वो उनको देते थे। कुछ लोग एरज को रुकने के लिए कहते थे कि रुको, हम ताजा खाना बना के आपको देते हैं। ऐसा करके एरज भाई सब जहां जहां से जो भी खाना, सब्जी, रोटी, चावल, दाल जो भी मिलता था वो सब लेकर आते थे और बाबा खुद अपने हाथों से अपने साथियों को खाना देते, पहले पुरुषों को, फिर महिलाओं को, और महिलाओं के साथ बैठकर वो खाना खाते। वो नजारा क्या होगा आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि ये किस तरह से ये पूरा ये बात किस तरह से आगे आगे बढ़ी और ये इस तरह से चलता गया। जौनपुर आए ये लोग, जौनपुर से मुरादाबाद, और जौनपुर के अंदर भी बड़ी सारी घटनाएं हुई, मुरादाबाद में घटनाएं हुई जो जिसका जिक्र पिछले रविवार को हमने देखा, जब बाबा ने गनी को परमिशन दी थी वहां पर जाकर होटल में खाना खाने के लिए और फिर भिक्षा मांगने के लिए वहां पर। अभी एक दो कहानी जो आखिरी है वो बताता हूं, फिर हम ड्रामा देखते हैं। जो ये पूरे पीरियड में, ये पूरा जो पीरियड था, इसमें कई लोगों का योगदान बहुत अधिक है। ये बहुत लंबा पीरियड था जिप्सी फेस, मगर दो लोगों की कहानी दो कहानियां बहुत टच कर जाती है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था तोड़ी सिंह। ये तोड़ी सिंह अलीगढ़ में रहता था। ये तोड़ी सिंह, उसका घी और बटर का बिजनेस था। ही वॉज अ बिजनेसमैन। और तोड़ी सिंह, किशन सिंह जो थे दिल्ली के, वो किशन सिंह के माध्यम से वो बाबा को पहली बार उसने मेहराबाद में देखा था, जस्ट बिफोर बाबा लेफ्ट फॉर द न्यू लाइफ। तो मैंने पहले रविवार को जब बताया था कि बाबा ने नई जिंदगी में जाने से पहले सबकी मीटिंग बुलाई थी, जहां पर यस नो का वो फैसला हुआ था कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। उस मीटिंग में ये किशन सिंह के साथ ये तोड़ी सिंह भी आया था, और तोड़ी सिंह ने बाबा को देखा वहां पर, और बाबा को देखते ही वो दीवाना हो गया। A glimpse, just a glance, just a glimpse of Baba, and he became absolutely like a must. वो मस्त बन गया। देखिए कैसा, क्या वो नजारा होगा। और तोड़ी सिंह को जब बाबा नई जिंदगी में निकल गए तो तोड़ी सिंह को सपना आया। सपने में बाबा उनको कहते हैं, वुड यू सर्व मी एंड वुड यू फीड मी एंड माई कंपेनियंस। क्या तुम मेरी सेवा करोगे और क्या तुम मेरे और मेरे साथियों को खाना खिलाओगे। ये तोड़ी सिंह को सपना आया। अब इस सपने को देखकर तोड़ी सिंह बहुत ही रेस्टलेस हो गया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि बाबा कहां पर है नई जिंदगी में। He did not know Baba's whereabouts and wondered how he would serve him. कैसे बाबा को वो बाबा की सेवा करेंगे। The one glance he had of Baba at Ahmednagar had changed him completely. He was so overcome by his love that he became almost like a must जैसा बन गया ये थोड़ी सी। बाबा की एक झलक देखकर he appeared absorbed, merged in Baba's love. बाबा के प्रेम में बिल्कुल दीवाना हो गया, मस्त जैसा बन गया। लेकिन उसका सपना उसको बड़ा बेचैन कर रहा था। And he longed somehow to obtain बाबा कहां है नई जिंदगी में, ये जानना चाहता था ताकि वो जाके बाबा की सेवा कर सके। अब ये समय में जब बाबा ये जिप्सी फेज में थे तो किशन सिंह ने नई दिल्ली से तोड़ी सिंह को ये कहा कि तू घी के 2 बहुत बड़े डब्बे बाबा को एज अ गिफ्ट लेकर जा और देहरादून में कैकी नाला वाला जो है उनके घर पे जाकर ये दे के आकर घी के बहुत बड़े डब्बे। तो तोड़ी सिंह बहुत खुश हो गया। डब्बे लेकर वो अलीगढ़ से देहरादून पहुंच जाता है और उसका लड़का भी वहां पर, गजराज, दोनों साथ में ये बड़े टिन लेकर वहां पर पहुंच गए। नालावाला के घर पे पहुंचे जहां कैकी देसाई भी हमारे थे।
तो कैकी देसाई ने उनको कहा कि बाबा अरे बाबा कल आ रहे हैं यहाँ पर देहरादून, बट वो किसी को देख नहीं रहे, और नई जिंदगी में बाबा किसी से भी कुछ ले नहीं रहे हैं, तो तुम यहां से चुपचाप ये सब कुछ लेकर निकल जाओ और बाबा को परेशान मत करो। तोड़ी सिंह बहुत नाराज हो गया जब कैकी ने कहा कि तुम यहां से निकल जाओ। तोड़ी सिंह ने देसाई को अपने सपने के बारे में बताया और बहुत ही जोर देकर कहा कि बाबा ने मुझे कहा कि मैं उनकी सेवा करूं। देसाई ने और जोर से कहा कि तुम यहां से निकल जाओ। अंत में बड़े रिलक्टेंटली तोड़ी सिंह ने उनसे कहा कि ये जो बड़े टिन है घी के, ये आप रखिए और ये आप बाबा को दे दीजिएगा। देसाई ने कहा, कैकी देसाई ने, मैं बाबा के आई कैन नॉट इंटरफियर विद बाबास कंडीशंस ऑन एनीवन्स बिहाफ। बाबा ने किसी से कुछ लेने के लिए और किसी से मिलने के लिए कहा नहीं है, तो मैं बाबा के बिहाफ में मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई डू नॉट इवन नो इफ बाबा विल सी मी, और मुझे भी बाबा देखेंगे कि नहीं जब देहरादून कल आएंगे, तो मुझे पता नहीं। तोड़ी सिंह ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ पास में धर्मशाला में रह रहा हूं, अगर बाबा आपको मिले तो बाबा से केवल इतना कहना कि ये टिन मैंने आकर दिए हैं, और उनसे कहना कि मैं बाबा और उनके साथियों को खाना देने के लिए बहुत उत्सुक। वो चले गए और कैकी देसाई उसके बारे में सब भूल गए। अगले दिन 12 जनवरी को बाबा देहरादून आते हैं, और आते ही बाबा ने कैकी देसाई से पूछा कि यहाँ पर मांजरी माफी में हम रह रहे हैं, उसके खाने का क्या, इतने दिन हम रहेंगे तो उनके खाने और रहने का क्या इंतजाम है। और हम लोग, बाबा ने कहा कि खाना हम केवल भिक्षा से ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। एट दिस, अभी देसाई को तोड़ी सिंह की बात याद आई, तोड़ी सिंह की ऑफर, लेकिन वो पुरानी जिंदगी में, तोड़ी सिंह तो पुरानी जिंदगी के व्यक्ति था, पुरानी जिंदगी का जिक्र कहीं बाबा के सामने ना हो, इसलिए कैकी कुछ बोले नहीं। बाबा ने उन्हें परमिशन दी, और कैकी ने फिर उनसे कहा कि बाबा, ये तोड़ी सिंह आया था और उसने ये आपको ये पूरा ये दिया है करके, वो तैयार है खाना आपको देने के लिए। बाबा ने कहा, देखिए, बाबा ने तोड़ी सिंह का प्रेम भांप लिया था, जो वो मस्त बन गया था, जो प्रेम उसके हृदय में था वो भांप लिया था। और तोड़ी सिंह ने बाबा से कहा, कैकी देसाई से कहा कि तोड़ी सिंह को बुलाओ। तोड़ी सिंह बाबा को देखकर दीवाना हो गया, इतना दीवाना हो गया कि जो भी प्रश्न उसे पूछा जाए उसका जवाब केवल वो एक ही देता था, बाबा जाने, बाबा नोज, बाबा जाने। He was asked, how did you bring these 2 big tins of butter in the train? तुम ट्रेन में लेकर कैसे आए? His answer was, बाबा जाने। बाबा ने पूछा, what do you want? तुम्हें क्या चाहिए? तोड़ी सिंह ने कहा, बाबा जाने। बाबा was highly amused, and he not only accepted the 2 tins of butter, but permitted Todi Singh to provide him and the companions all their foods as bhiksha. He was asked to begin from the 16th of January, and again when questioned, are you ready to give food as alms for 10 days from the 16th of January? His answer was, Baba Jane. वो केवल यही बोला, Baba Jane. Baba laughed, and from that day, Todi Singh's nickname was nicknamed as Baba Jane. Todi Singh offered to bear the expenses of the food provided by Kumar until his return, and Baba allowed it. He returned to Aligarh, and on the 15th of January with the required materials, he and his family came back to Dehradun, and from there they went to Manjri Mafi. तो ये तोड़ी सिंह घी वाले की जो कहानी है, कितनी कितनी बढ़िया, कितनी हृदयस्पर्शी। हर जवाब, he really lived the new life if you actually see, because for every question, the only answer he had was Baba Jane, Baba knows. What a fortunate soul he was. What a truly fortunate soul he was, because he lived that life of complete renunciation and samarpan to the beloved. And the last story, which is most touching, and these facts I checked with our dear Davana last week, कि बाबा और उनके साथी जब ये जिप्सी फेज में जा रहे थे, तो एरज भाई कहीं से खाना सब ये भिक्षा में मांग कर लेकर आए, और पेड़ के नीचे बैठकर, बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बाबा सब अपने साथियों को खाना दे रहे थे और सब खा रहे थे। तो पेड़ के ऊपर कोई बंदर बैठे थे, और बंदर, एज यूजुअल, दे वर ऑल चैटरिंग, द मंकीज। और एरज भाई ने मजाक में, सार्केज्म में बाबा से ये कहा कि बाबा,
देखिए ये बंदर भी हम जो खाना खा रहे हैं इसके ऊपर हंस रहे हैं ऊपर बैठकर कि कैसा हम बैठ के ये खाना खा रहे हैं। बाबा ने एरज से कुछ कहा नहीं उस समय, और ये बात एरज भाई भी भूल गए। नई जिंदगी खत्म हो गई। बाबा के जीवन काल के आखिरी दिनों में एक दिन एरज भाई महराजाद में बाबा की पीठ को मालिश कर रहे थे, और बाबा ने अचानक एरज से कहा कि एरज तुझे याद है, डू यू रिमेंबर, कि नई जिंदगी में जब हम लोग गए थे और वो पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे तो ऊपर वो बंदर बैठकर आवाजें कर रहे थे। तो पहले तो एरज भाई को बात याद नहीं आई, फिर बाबा ने फिर से कहा तो एरज को याद आई, हाँ बाबा मुझे याद अभी आ रहा है करके। तो तभी बाबा ने एरज से कहा कि वो बंदर खाने का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो बंदर आपस में ये कह रहे थे कि ये इंसान कितने खुश नसीब है कि अवतार के साथ बैठकर आज उन्हें खाना खाने का मौका मिला। ये जिप्सी फेस की एसेंस अगर कुछ है तो ये यही है। ये बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही ब्यूटीफुल फेज है। आइए इसको हम ड्रामा के रूप में, जो ड्रामा हमने किया था जिसमें जिप्सी फेज पूरा है, जिसमें सारे एनिमल्स की स्टोरीज है, हमारे डॉक्टर गनी की स्टोरीज है वगैरह सारी सब है, वो आपके सामने रखते हैं और अवतार मेहर बाबा को याद करते हैं। मे वी हैव द ड्रामा क्लिप प्लीज। अवतार मेहर बाबा की जय। पादरी लेकर कैरावैन आए ट्रेन से, बैलगाड़ी बैल लाए प्रेम की वे देन से। ऊंट आया अश्व आया, आई गधियां गाय भी, अगम बलशाली प्रभुवर और थे असहाय भी। कारवां तैयार प्रभु का क्या ही अद्भुत हो गया, देख छवि सब देवताओं का होश बिल्कुल खो गया। आज से हमारा फकीरी जीवन पदयात्रा से शुरू हो रहा है। हम लोग यहाँ सारनाथ से बनारस होते हुए देहरादून जाएंगे, जहाँ कैकी देसाई ने हमारे लिए जगह तय कर रखी। नई जिंदगी में हमें सत्य बोलना चाहिए, और अब जब हम फकीरी जीवन शुरू कर रहे हैं तब हमें मान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ेगा, किंतु हमें दोनों से ही अप्रभावित रहना चाहिए। जी बाबा। मनी, अब हम लोग यहाँ से पदयात्रा करके देहरादून की तरफ जाएंगे। तुम लोग तैयार हो ना? जी बाबा, हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं। जहाँ भी आप ले जाएंगे हमारी खुशी तो उसी में है। हम लोग तो इस पदयात्रा के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। तो चलो हम लोग चलते हैं। अब हमें कारवां के साथ साथ ही जाना है। सारनाथ को छोड़ चला कारवां रात में। इस युग को देने को नई जिंदगी के साथ
बनारस से चले, जौनपुर में जाके पहुंचे, बाग काई में खुले। काम तो हर एक के ही रहता था, बस हाथ में वहां, और उन्हें आराम पथ में मिलता था बिल्कुल कहां। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा सबका इंतजार कर रहे होंगे। उनके आदेशानुसार हम सबको इस समय उनके पास होना चाहिए। एरज, हम लोगों को रास्ते में जो तकलीफें सहनी पड़ी है, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। हाँ देखो, वो देखो, सर्दी के मारे बेचारे बूढ़े उस्ताद जी तो उठ भी नहीं पा रहे हैं। हमारे सब कपड़े तो वहां बनारस में ही दे दिए गए। एरज, तुम्हारा समय तो हमारे ग्रुप के हेड के साथ बहुत अच्छा गुजरता होगा। बस तुम्हें तो उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है। तुम्हें पता है हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं? ये जानवर हमें क्या क्या तकलीफें देते हैं। हाँ, इस जू के कारण हमें कितनी तकलीफें हो रही है। ठीक है, जो भी हो, यही हमारा भाग्य है। हमें इसे मानना चाहिए और अपनी तकलीफों को भी। वे तो ठीक है, पर मुझे देखो, एक बछड़ा हमेशा मेरी पीठ पर लदा रहता है। रास्ते में टैक्स कलेक्टर ने मुझे टैक्स के लिए रोक लिया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। वे तो एक ने तरस खाकर 8 आने दे दिए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। और तुम जानते हो सुबह की चाय बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? सुबह जल्दी उठकर गाय का दूध निकालना पड़ता है, तब कहीं जाकर चाय बनती है। एरज, तुम क्या सोचते हो? क्या हमारे साथी के लिए यह ठीक है कि वह हमारे इन बूढ़े लोगों को इस तरह घिसटने दे? क्या वह हम बूढ़े लोगों को कुछ रियायत नहीं दे सकता? क्या उसे चलने के लिए छोटे छोटे रास्ते नहीं अपनाने चाहिए? क्या वह हमें कार्स में नहीं बैठने दे सकता? यह ऊंट गाड़ी खाली जाती है और कैरावान का तो कोई उपयोग ही नहीं है, सिवाय इसके कि इसमें महिलाएं रात को आराम करती है। अगर हम इनमें बैठ जाए तो हम सबके लिए रास्ता तय करना कितना आसान हो जाएगा। हाँ भाई, मैं ये सब समझता हूँ, पर अभी इसके बारे में बात करना ठीक नहीं है। हम लोग बाद में सोचेंगे, पर अभी तो चलो। पर एरज, क्या तुम जानते हो इस घोड़े को कैसे हैंडल करते हैं? ये घोड़ा नहीं, एक डेविल है। ठीक है, अभी यह सब छोड़ो और प्रसन्न मुद्रा में बाबा के पास चलो। ठीक है, चलो। कहो भाई, रात कैसे गुजरी? सब ठीक रहा ना? जी बाबा, सब कुछ ठीक है। क्यों गनी, रात को ठीक से सोए या कुछ परेशान रहे? नहीं, हाँ बाबा, मैं तो ठीक से ही सोया था। अच्छा, तब तो सब बढ़िया है। एरज, हम लोग जौनपुर में 2-3 दिन के लिए ठहरेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसा आप चाहे बाबा। चलो जरा मैं महिलाओं के कक्ष में तो जाता हूं, देखूं उनका क्या हाल है। अब तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस तरह से पार्टीज मैदान में भाषण देती है, उसी तरह हमारा ग्रुप भी अपनी भावनाएं क्यों नहीं व्यक्त कर सकता? बाबा ने कहा था कि वह इस नई जिंदगी में मानव रूप में ईश्वर या मास्टर नहीं, बल्कि हमारे एक साथी है। तो क्या एक साथी अपने दूसरे साथी लोगों को अपनी तकलीफें नहीं बता सकता? क्यों नहीं? ऑफ कोर्स हम ऐसा कर सकते हैं। अगर नई जिंदगी का मतलब एक कंपेनियनशिप की लाइफ है, तो हम हमारी तकलीफें जरूर एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, तुम अपनी तकलीफें जरूर एक्सप्रेस कर सकते हो, मगर मुश्किल यह है कि बाबा की उपस्थिति में हम अपना लंबा चेहरा दिखा नहीं सकते। नई जिंदगी की शर्तों के मुताबिक हम अपना डिस्प्लेजर दिखा नहीं सकते। मेरे पास एक रास्ता है। हम लोग हड़ताल करेंगे। हड़ताल? हाँ, कल सुबह जब हमारा बॉस आएगा, हम हड़ताल करेंगे। कोई भी बाबा के पास नहीं जाएगा। क्या आप सब लोग इसके लिए तैयार हो? हाँ, हम लोग हड़ताल जरूर करेंगे। हम भी इस जिंदगी से थक गए हैं। हाँ, और इस तरह बिना किसी सहायता के हम कैसे आगे जा सकते हैं? हाँ, और कब तक जा सकते हैं? तुम्हें याद है बाबा ने शुरू में कहा था कि इस नई जिंदगी का कोई अंत नहीं है, और हमने भी यह माना था कि अब हम कभी अपने पुराने तौर तरीकों या जगहों पर वापस नहीं जाएंगे। तो तय हो गया, हम हड़ताल पर जाएंगे। बाबा के ताली बजाने पर भी हम उनके पास नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। एरज, तुम क्या करोगे? मुझे तो बस इतना ही कहना है कि मैं बाबा के साथ ही रहूंगा, और क्योंकि मुझे ऐसी कोई तकलीफें नहीं है,
इसलिए मैं तुम लोगों का समर्थन भी नहीं करता। एरज, तुम एक हिपोक्रेट हो। एरज, जी बाबा। आज यहाँ एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अपने सब साथियों को बुला लाओ। सुनो, बाबा आ गए हैं। वे तुम सबको एक बहुत ही जरूरी कॉन्फ्रेंस के लिए बुला रहे हैं। चलो, यह अच्छा नहीं है। हम लोगों का ऐसा करना ठीक नहीं है। डॉक्टर गनी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वह बाबा की सिर्फ एक नई जिंदगी के साथी ही नहीं बल्कि सहपाठी भी है। और तुम्हें पता है ना कि बाबा उनको कितनी छूट देते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं। क्या बात है एरज, ये लोग नहीं आ रहे क्या? बाबा, वे लोग आ रहे हैं। एरज, गनी को बोलो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो स्थिति का सामना करो और अपने साथी से अपने मन की बात बोलो। गनी, बाबा कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो अपने मन की बात उनसे आकर कहो। क्या मेरे अंदर हिम्मत नहीं है? ऑफ कोर्स मेरे अंदर अपने साथी के पास जाकर अपनी बात कहने के लिए बहुत हिम्मत है। मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं तो इन लोगों से वैसे ही कह रहा था। चलो। क्या बात है गनी? बाबा, ये हमारे सारे साथी और कुछ नहीं, सिर्फ हिपोक्रिट्स है। पर गनी, तुम उनको हिपोक्रेट क्यों बोल रहे हो? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि ये आज आपके पास नहीं आएंगे, और इन्होंने मेरे साथ ये भी प्रॉमिस किया था कि ये हमारे निर्णय से बंधे रहेंगे कि हम। तुम किसी से भी प्रॉमिस लेने वाले कौन होते हो? एरज, अब तुम बोलना बंद करो। मैं बाबा के इशारे समझता हूं। तुम्हें यह सब कहने की जरूरत नहीं है। गनी, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा एक साथी ही नहीं बल्कि एक सहपाठी भी हूं। तुम्हें याद है पहले हम कैसे कुश्ती करते थे? क्या तुम इस इश्यू को सुलझाने के लिए फिर से मेरे साथ कुश्ती करना चाहते हो? उस दिन से सबने दिया प्रेम पूर्वक हरेक का साथ, छोड़ी ईर्ष्या, पाकर सबका साथ। गाय बेची, ऊंट बेचा, कष्ट वे थे दे रहे, जान सबकी राह में वे खूब ही थे ले रहे। वे मुरादाबाद पहुंचे और लीला हो गई, पड़ रही थी ठंडी ज्यादा, अशांति सबको हो गई। गरम वस्त्र हर जीवन ने भेजे दिल्ली से सबके लिए, और अपनी ओर से यह भिक्षा में देते हुए। जिंदगी की शून्य अवधि फिर बिताई गई वहां, 10 दिवस आराम सबको मिलता रहा वहां। ये थी डॉक्टर गनी द्वारा आयोजित स्ट्राइक जौनपुर के अंदर, एंड बाबा ने उसको कितने स्किलफुली एंड कितने ब्यूटीफुली उसको हैंडल किया, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और ये पूरा जो पीरियड है उसकी पूरे जिप्सी पीरियड की जो डिटेल्स है वो बहुत ही सुंदर है। उसमें कैकी नारावाला, कैकी देसाई, हमारे शत्रुघ्न कुमार, इनका भी बहुत अहम रोल और बहुत अहम किरदार रहा है। और ऑफ कोर्स साथ में बाबा के तमाम जो नई जिंदगी के साथी थे उनका तो बहुत ही अहम किरदार है। मगर इसकी एक झलक, जो कठिनाई उनके सामने आई, उसकी झलक आपके सामने ये इस ड्रामा के माध्यम से प्रस्तुत हुई। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जैसे बाबा ने भी बात बताई है कि अगर नई जिंदगी जीनी है तो इट इज अ फाइट विद अवर लोअर सेल्व्स, और वो लड़ाई जो है वो बहुत ही कठिन लड़ाई है। अगर वो लड़ाई में कोई कामयाब हो गया तो वो मर्द खुदा बन जाता है, वो नई जिंदगी जीने के लिए काबिल हो जाता है।
एक्टिविटी 3 के लिए मैं आस्क Mervina to please tell us what is the activity for this week. Mervina, would you like to just share with us? No, there isn't anything much to say about this. As we can see that the entire week, this is the activity that we have to do. Remembering the gypsy face, be cheerful and remain unaffected by praise and criticism. That's the activity for the week. ये करना बहुत ही कठिन है. As I said, the fight over the lower self, but this is the activity. Please try and see if we can all do this. May Baba really help us in terms of doing something of this kind, to being cheerful and remaining unaffected by praise and criticism. But जो सबसे महत्व की बात जो है कि बाबा ने खुद ने ये नई जिंदगी जी है. Beloved Baba himself lived this new life. पूरे जिप्सी फेस के अंदर जितनी कठिनाई उनके साथियों को आई, उतनी कठिनाई उन्होंने भी अपने स्तर पर ली. But he lived that new life and he set an example. So ये जिप्सी फेस की बात हम यहीं पर रोकते हैं. अवतार मेहर बाबा को प्रार्थना करते हैं कि कभी तो हम जीवन में नई जिंदगी को जी पाने के लिए सक्षम बने, केपेबल बने. आज का कार्यक्रम बाबा की धुन, मेडिटेशन और आरती के साथ समाप्त करेंगे. अगले रविवार को फिर से मिलेंगे 5:30 बजे नई जिंदगी के एक और पहलू को लेकर और उसको आगे लेके जाएंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो फेस था और उनकी जो कहानियां थी आपको अवश्य पसंद आई होंगी. अवतार मेहर बाबा की सच्चिदानंद परमानंद मिहिर बाबा विज्ञानंद. सच्चिदानंद परमानंद मिहिर बाबा विज्ञानंद. 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 सच्चिदानंद परमानंद मिहिर बाबा विज्ञानंद. सच्चिदानंद परमानंद मिहिर बाबा विज्ञानंद. 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 सच्चिदानंद परमानंद मिहिर बाबा विज्ञानंद. सच्चिदानंद परमानंद मिहिर बाबा विज्ञानंद. 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 सच्चिदानंद परमानंद मिहिर बाबा विज्ञानंद. सच्चिदानंद परमानंद मिहिर बाबा विज्ञानंद. Avatar Meher Baba ki Jai. I would request you all
to sit back and relax your body by taking a comfortable seat. Ensure that the posture should not involve any physical tension or pain, because it would then draw your attention to the body itself. Now, gaze deeply at the portrait of God before closing the eyes in meditation, in order to facilitate to bring the features of God to one's mind's eye. Bring your gaze on the image of your beloved, Meher Baba. Let the passing thoughts come and go. Do not fight them. Let your eyes be fixed on his beautiful form, Meher Baba. Slowly close your eyes and continue to hold the image of your beloved Meher Baba in your mind. Get drowned in the divine beauty of your beloved Meher Baba.
thoughts will come and go. Gently bring your attention back to the Lord.
Thank you very much for joining. Avatar Meher Baba ki jai. We will all catch up and meet again next Sunday at 5:30 for the Manonash phase of the new life. Avatar Meher Baba ki jai.